Okay, let's start mirror formula. Let's start the mirror formula. And mirror formula is a formula which defines the relation between the focal length of the mirror, uh, distance of object from the mirror, and distance of image from the mirror. So what we can write, 1 upon f is equal to 1 upon b plus 1 upon u. And here, what are the f, b and u? Here we can see that f is the focal length of the mirror. Yes or no, beta? And for concave mirror, focal length is positive or negative? Negative. 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 Focal length of the concave mirror is negative, and for convex mirror, Positive. concave mirror is positive. And u is the distance of object from pole of the mirror. Yes or no, beta? Yes, sir. Yes, or we can say that the distance of object from the mirror, because all the distances are measured from the pole. So we can say that the distance will be from the object, the distance of object from the pole of the mirror is u, and u is always negative. Yes or no, beta? U is Yes. always negative. Yes or no? Always नेगेटिव होता है बेटा. तो हमारे पास में चलिए यहाँ पे नेगेटिव लिख लेते हैं कि यू हमारे पास में कैसा होगा बेटा? नेगेटिव. ओके, एंड v is the distance of Image. from pole of the mirror. From pole of the mirror. Yes or no, beta? Yes, sir. Yes. And the distance of image from the pole of the mirror can be negative, positive, or negative. It depends on the position of the image. It depends on the position of the image. And this is the formula which gives, it shows the relation between focal length, object distance, and image distance, and all the distances are measured from mirror. Yes or no? Or we can say, we can write here from pole of the mirror. Pole of mirror. Yes or no, beta? Yes. So next one is power of the mirror. Power of the mirror. And power of the mirror is defined by what? Optical power. Optical power of mirror is defined as the reciprocal of focal length of the mirror. Focal length of the mirror. Yes or no, beta? So what we can write, power is equal to 1 upon focal length. Yes or no? So P is equal to 1 by F. Yes or no, beta? So we can write that power of the concave mirror, power of concave mirror is positive or negative?
पॉजिटिव सर, नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव। बेटा फोकल लेंथ नेगेटिव होता है ना, देखो अभी ऊपर लिखा हुआ है ना, अभी लिखा है जस्ट ऊपर देखिए, यहाँ और पर ये लिखा हुआ है देखिए, फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर इज नेगेटिव। सो 1 अगर माइनस एफ से डिवाइड करोगे बेटा माइनस से, तो क्या होगा, पावर ऑफ कॉन्केव मिरर क्या होगी, नेगेटिव होगी। यस और नो? एंड यस पावर ऑफ convex mirror is positive. Then what will be the unit of the power? Unit of power, सर ये जो पावर है वो दोनों मिरर और लेंस दोनों के लिए होता है। हाँ बेटा दोनों के लिए होता है, सेम फॉर्मूला है हमारे पास में, लेंस के लिए और मिरर के लिए, दोनों के लिए। ठीक है, पावर यूनिट ऑफ पावर क्या होगी बेटा, देखिए यहाँ पर हम वी ऑलवेज फॉलो द एसआई यूनिट सिस्टम। यस और नो? सो यहाँ पर अगर हम फोकल लेंथ को मेजर करेंगे बेटा, तो वो किसमें मेजर करनी पड़ेगी, मीटर में होना चाहिए। तो मीटर। पावर ऑफ द लेंस मिरर हमारे पास होगी, वो क्या होगी बेटा, 1/मीटर। यस और नो? होगा बेटा। एंड यहाँ पर इसको क्या बोल सकते हैं, मीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं। यस और नो बेटा? एंड यस। it is called diopter. Yes or no? It is called diopter, and which is represented by capital D. And next one, what we have, the relation between focal length and radius of curvature. We have already written that. Yes or no? Radius of curvature लिखा है बेटा हमने। क्या रिलेशन होता है बेटा, F इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, r/2। R/2 होता है। यस और नो? और वी कैन से R इज इक्वल टू 2F, है ना। देन Yes. उसके बाद में हमारे पास एक और फॉर्मूला आता है बेटा, जो हमारे पास आता है क्या, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। Magnification of mirror. And how we define the magnification? Height of image by height of the object. Very good. It is defined as the ratio of height of image to the height of object. Yes or no beta? So we can write m is equal to height of image upon height of object. So we can write m is equal to hi represents the height of image and ho represents the height of objects. Yes or no beta? Yes. And there is another Yes. formula between the relation between, which gives the relation between magnification and distance of object from the mirror and distance of image from the mirror. So we can write magnification is equal to minus b upon u. Yes or no beta? So we can also define magnification as minus sign, then image distance from mirror divided by object distance from mirror. Then what we can write, that magnification is equal to minus v upon u, and it is also equal to height of image upon height of object. Relation between magnification, focal length and object distance. Okay, so what we know, that 1 by f is equal to 1 upon b plus 1 by u beta. Then what we can write, 1 by f is equal to, we can take, if I want to define the relation between u, f and m, then I will take the common u from this equation, then that will be equal to u upon b
plus 1 upon 1. Yes or no beta? U upon V plus 1. I can take the common. Yes बेटा, Yes, है sir. ना, कॉमन ले सकते हैं. देन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया. देन क्या होगा बेटा, देखिए v u अपॉन v प्लस 1 इज इक्वल टू u बाई एफ होगा. देखिए होगा कि नहीं होगा बताइए. देन Yes. what we can write, u by f is equal to u upon f minus 1 होगा बेटा. u by b, sorry, u by b is equal to u upon f minus 1. Yes or no? Then what we can write, u by v is equal to u minus f upon f. Yes, then take the reciprocal of v by u. Then what we will get, v by u is equal to क्या होता है बेटा बताइए, f upon u minus f. होगा कि नहीं होगा बेटा बताइए. Yes. sir. यस बेटा. देन दोनों तरफ अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए बेटा, माइनस वी अपॉन यू अगर हमारे पास होगा, देन आई विल गेट एफ अपॉन यू माइनस एफ को जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा बेटा, माइनस वी अपॉन यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, एफ अपॉन एफ माइनस यू होगा बेटा. Yes, sir. Yes, then I will get, we know that minus v upon u is equal to magnification. Then m is equal to f upon f minus u. Yes or no beta? Yes, sir. Yes, same as above. We can also define the relation between m, f and v. Same as above, the relation between m, f and v हमारे पास में क्या हो जाएगा बेटा बताइए. यहाँ से बताइए क्या कॉमन लेना होगा हमको. 1 upon f is equal to हम करेंगे 1 upon v plus 1 upon u. Then I will take the common is 1 by v कॉमन ले सकते हैं बेटा. 1 by v कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, 1 plus v upon u मिलेगा बेटा. देखिए देन वी विल गेट, Yes. यहाँ से इसको बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे करेंगे तो v अपॉन f इज इक्वल टू हमें मिलेगा 1 अपॉन v प्लस u. देन इस 1 को इधर शिफ्ट करेंगे, देन हमें क्या मिलेगा बेटा, v अपॉन u इज इक्वल टू हमें मिलेगा v बाई f माइनस 1. देन व्हाट वी विल गेट, v अपॉन u is equal to v minus f upon f. Yes, sir. Yes, then Yes. if I multiplied minus both sides, then I will get minus v upon u is equal to f minus v upon f. And we know that minus v upon u is equal to magnification. Then I will get magnification is equal to f minus v upon f. Okay, answer me the question number 1. Image distance and यहाँ पर object distance बताइए. Object distance. all of them. Object distance. Then which option will be correct? All of the Option above. D. All of the above, है ना बेटा. तो देखिए अगर आपको बेटा फॉर्मूला ठीक से पता है और आप उसको आंसर कर सकते हो, तो जब आपको या तो आपको एग्जाम में ये आपको प्रैक्टिस करनी होगी कि आपको सिर्फ ये वाला फॉर्मूला अगर आपको पता है मैग्निफिकेशन का, ठीक है. अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस अच्छे से की और आपको एफ और एम वी में रिलेशन पता है, एफ एम यू में रिलेशन पता है, देन यू कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन. यस और नो. तो हमें क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है, देन उसके बाद में मूव करना है. लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, it is given in the question that object of 5 centimeter height. तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है बेटा, what are the data given in the question? First of all, it is given in the question that height of object is 5 centimeter. Yes or no? And the focal length of the concave mirror is 20 centimeter. Okay, height of object is 5 centimeter, height of image is focal length is 20 centimeter, and focal length of the concave mirror is always negative or positive?
Negative. Negative. So the focal length will be negative here, and distance of object from the mirror is given 40 centimeter. Yes or no, beta? And it is always Minus 40. minus 40 centimeter. So first of all, what we have to find out the distance of image. Distance of object, distance of image is given by v, and what will be the size of image? Size of image क्या होती है बेटा? Height of image हमारे पास होगी, and nature of image के लिए हम क्या करना होगा? Because rays of light कहाँ पर होगी, उसके according हम डिसाइड करेंगे. Yes or no बेटा? Yes. Yes, sir. Yes. Okay. Yes. Okay. By using the mirror formula, what we can say? What is mirror formula? 1 upon f is equal to 1. by v plus 1 by u. Yes or no beta? Then put all the values with sign in the formula. With sign रखेंगे बेटा minus 1 upon 20 होगा बेटा, देखिए, is equal to 1 upon v plus 1 upon minus 40. Yes or no beta? Yes. Then what we will get? 1 upon v is equal to, we can write 1 upon 40 minus 1 upon 20. Yes or no? Then after solving this, 1 upon b is equal to, what will be the LCM? 40 into 20. Then we can write 20 minus 40, which is equal to 1 upon b is equal to minus 20 upon 40 multiplied by 20, and 20 is cancelled by 20, so we get v is equal to minus 40 centimeter. Now for the size of image, what we can calculate? Magnification. Magnification is defined as minus v upon u. Yes or no? Which is equal to height of image upon height of object. Then we can write minus, put all the values with sign. V is equal to, we have already got that v is equal to minus 40, then divided by distance of object from the mirror is minus 40 centimeter. Yes or no beta? And height of image upon height of object, which is already given 5 centimeter. Yes. Then by solving this, minus 40 is cancelled by minus 40. Then what we will get? We get height of image is equal to minus 5 centimeter. Yes or no beta? Here negative sign is showing that image is formed below the principal axis. Yes or no beta? Here negative sign showing that image is formed below the principal axis. Yes or no? Yes, sir. Yes. And magnification is, we got magnification is negative, and when magnification is negative, then we can see that the rays of light actually converge. So the nature of the image will be real, and by using this sign, height of image is negative, we can say that image is inverted. Yes or no beta? Yes, sir. Yes. So this will be the answer of third question. Let's start the next question. First in the question, let's check it out that what is the data given in the question. The first one given, it is given that object is placed at a distance of 20 centimeter from the mirror. So u will be is equal to 20 centimeter. Yes or no beta? 20 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा बताइए? minus 20. माइनस 20 होगा. Minus 20. नेक्स्ट बोला गया है f इज 15 सेंटीमीटर. ओके, f इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? 15 सेंटीमीटर. ओके, ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा बताइए?
Negative. नेगेटिव होगा। क्यों होगा बेटा? बिकॉज फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव। ये कॉन्केव मिरर है। and given that height of object is 5 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या क्या फाइंड आउट करना होगा बेटा? सबसे पहले तो बोला गया है फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पोजीशन ऑफ इमेज के मतलब हमें क्या होगा बेटा? v हमें फाइंड आउट करना है, यस और नो? एंड v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। सर मैंने भी भेजा चैट पे हाँ बेटा, वेरी गुड बेटा, फर्स्ट आंसर सही है, सेकंड भी सही है, वेरी गुड। ओके, वी हमें फाइंड आउट करना होगा। देन साइज ऑफ इमेज के लिए क्या होगा बेटा? हाइट ऑफ इमेज हमें फाइंड आउट करना होगा, यस और नो? और हाइट ऑफ इमेज एंड देन उसके बाद में नेचर ऑफ इमेज के लिए क्या फाइंड आउट करना होगा बेटा? Magnification. मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वी एच आई एंड मैग्निफिकेशन, देन आफ्टर वी विल ड्रॉ द रे डायग्राम। ओके, सो by using which formula? By using Mirror. mirror formula. Mirror formula, we can say that 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u. Then put all the values with sign in the formula, yes or no? Yes. Minus 60. Then my focal length is minus 15, so minus 1 upon 15 is equal to 1 upon v plus 1 upon minus 20, and 1 by v is equal to, we can write 1 by 20 minus 1 by 15. Yes, so what would be the LCM? LCM would be 20 into 15, yes or no beta? So we get 15 minus 20, so we can calculate that v is equal to minus 5 divided by 20 multiplied by 15, yes or no beta? And 15 is cancelled by 5, then what we get? 1 upon v is equal to 3 times, then 1 upon v is equal to minus 1 upon 20 into 3. So v would be equal to minus of 60 centimeter, yes or no beta? And here negative sign showing that the image is formed at the same side where object is placed, yes or no beta? Yes. 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 Okay. Now what we have to calculate? For calculate the height of image, first calculate the magnification. So we know that magnification is equal to minus v upon v, yes or no? So magnification is equal to minus, and the value of v is minus 60, and divided by value of u, which is minus 20. Okay. Now 60 is cancelled by 20, then we get 3. Then what we get? Magnification is equal to क्या होना चाहिए बेटा? minus 3 times, yes or no? अब देखिए यहाँ पर क्या होगा बेटा? नेगेटिव साइन जो है वो क्या शो कर रहा है कि इमेज कैसी होगी बेटा? मैग्निफिकेशन अगर Real. नेगेटिव होगा और तो इमेज कैसी होगी बेटा? रियल एंड इन्वर्टेड हमारे पास होगी। एंड वी नो that magnification is also equal to height of image upon height of object. So minus 3 is equal to height of image upon 5. So height of image is equal to minus of 15 centimeter. And here this negative sign shows that image is inverted. So we can write that position of image will be equal to 60 centimeter at the same side of object from mirror, and the magnification is minus 3. Yes, and height of image is equal to 15 सेंटीमीटर। मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना? तो उसकी जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा? 15 सेंटीमीटर। एंड नेचर ऑफ द इमेज जो हमारे पास होगी वो कैसी होगी बेटा? नेचर ऑफ इमेज कैसी होगी बेटा? रियल एंड Inverted. इन्वर्टेड।
रियल एंड इन्वर्टेड हमारे पास होगी नीचे। ओके, नेक्स्ट अब हम आते हैं बेटा रे डायग्राम ड्रॉ करने पर। ठीक है, तो रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें किस किस की जरूरत है बेटा? तो u इज इक्वल टू -20 गिवन है, v हमारे पास -60 आया है, एंड फोकल लेंथ कितना बेटा? -15 सेंटीमीटर। इसी की जरूरत है बेटा। एंड हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू कितना है? 15 सेंटीमीटर है, एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना गिवन है? 5 सेंटीमीटर। सो लेट्स ड्रॉ द रे डायग्राम। दिस इज द कॉन्केव मिरर एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। सर वहाँ पे हाइट ऑफ इमेज -15 आएगा ना? हाँ बेटा, -15 आएगा, साइन लिखेगा ना। हाँ, -15। ठीक है, तो यहाँ से देखिए बेटा फोकल लेंथ कितना गिवन है? तो 15 सेंटीमीटर है ना। तो ये जो लेंथ है इसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे बेटा? 15 सेंटीमीटर। ओके, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने पे होगा बताइए? ये होगा बेटा। एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर का मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं पर होगा बेटा, देखिए। यस और नो? यस। होगा बेटा। चलिए अब इसका रे डायग्राम हमको बनाना है, तो रेज हम सबसे पहले तो ये मार्क कर देते हैं कि रेज कहाँ से जाने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास व्हेन अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर द रिफ्लेक्शन it will pass through the focus। फोकस। यस और नो बेटा? तो फोकस से पास होगी, तो फोकस से जाने वाली जो रे ऑफ लाइट होगी हमारे पास में। सर हाँ बेटा बोलिए। सर हम लोग रे डायग्राम में जो फोकल लेंथ का जो मेजरमेंट रहेगा वो सिर्फ 15 सेंटीमीटर लिखेंगे कि -15? बेटा डायग्राम में आप 15 सेंटीमीटर लिखना है सिर्फ। डायग्राम में सिर्फ आपको डिस्टेंस ओके मेंशन करनी है, तो यहाँ से ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो 15 सेंटीमीटर। ओके, चलिए। ओके, सेकंड रे ऑफ लाइट कहाँ से लोगे बेटा? पोल से ले सकते हैं, देखो। यस और नो? पोल से हमारे पास होगी तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा बेटा। इसी में हमारे पास में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी ऐसे होगा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो हमारे पास होगा वो भी ऐसे होगा बेटा, देखो। Now, rays of reflected rays are intersecting at this point. So this will be the image of A, which is A dash. Then image of AB will be equal to when we draw a perpendicular on the principal axis, which is AB dash. And we can see that height of image is 15 centimeter and this is 5 centimeter. यस और नो बेटा? तो आप ये जो भी रे डायग्राम ड्रॉ करोगे बेटा, तो वो विद आप साइन के साथ में करना और मेजरमेंट के साथ में करोगे, तो आप देखोगे कि एग्जैक्ट जो आपकी साइज होगी बेटा, वो यहाँ पर इमेज और ऑब्जेक्ट की जो साइज होगी वो दोनों एग्जैक्ट वही आएगी जो हमने कैलकुलेट किए। तो यहाँ पर डिस्टेंस मेंशन करने के लिए आप यहाँ पर कर सकते हो। ये 15 सेंटीमीटर होगा बेटा फोकल लेंथ, और ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी वो ये वाली होगी। यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी होगी बेटा? Let's start the third question. चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लिखना है बेटा कि व्हाट इज द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बोला गया है अ 1.2 सेंटीमीटर लॉन्ग पेन इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके बेटा, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। 1.2 सेंटीमीटर लॉन्ग पेन मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी गिवन है बेटा बताइए? 1.2। 2 centimeter. Okay, is placed perpendicular to the principal axis of convex mirror। मतलब बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है कि मिरर कौन सा गिवन है बेटा? कॉन्वेक्स मिरर है, और फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। मतलब फोकल लेंथ बेटा बताओ 12 सेंटीमीटर होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव होगी। यस, बिकॉज द फोकल लेंथ इज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। यस, और एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर। मतलब u इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? 8 सेंटीमीटर होगा। यस, पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव। Negative. U is always negative. Okay. Then what we have to find out? First, find out the position of image. Find out position of image means to say we have to find out V. Then nature of the image के लिए बेटा magnification find out करना होगा. Okay. And size of image के लिए हमें क्या find out करना होगा? Height of
इमेज हमें कैलकुलेट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या होगा बेटा, बाय यूजिंग हाँ सर। mirror formula, then what we can write, we can write that 1 by f is equal to 1 by b minus 1 upon e, yes or no? Then 1 by f is equal to क्या हो जाएगा बेटा बताइए, 1 by 12 is equal to 1 by b plus 1 by कितना होगा बेटा, u कितना है बताओ, -8 सेंटीमीटर। मिरर फॉर्मूला तो 1/v + 1/u होता है ना। वेरी गुड बेटा, मैं ये चेक कर रहा था कि आप लोग वेरी गुड। 1/12, तो यहाँ से बेटा देखिए जो -1/8 है उसको मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा यहाँ पर, तो 1/b इज इक्वल टू क्या मिलेगा बताऊंगे, 1/8 + 1/12, यस और नो? यस। Yes, सो sir. 1/b इज इक्वल टू, बताइए आप एलसीएम कितना होगा बेटा, 8 × 12 लिख सकते हैं बताइए, हाँ या ना? हाँ सर, नहीं तो 24 ले सकते हैं हाँ एलसीएम। 24 आप ले सकते हो, है ना, वो आपके जो भी आपको मेथड आपको सुटेबल लगता है उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हो। देखिए 8 और 12 लेंगे तो 8 से 8 कैंसिल हो गया बेटा, तो कितना बचा 12, देन फिर प्लस 12 से 12 कैंसिल हो गया तो 8 रिमेनिंग रहा बेटा, देन 1/b इज इक्वल टू हम लिखेंगे तो 20 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 12 होगा बेटा, यस और नो? तो हाँ यहाँ से सर। देखिए अब जो कैंसिल आउट हो सकता है, 4 से अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ बेटा 2 टाइम्स होगा और ये 5 टाइम्स होगा, मीन्स टू से b इज इक्वल टू मुझे मिलेगा बेटा 24 डिवाइडेड बाय 5 सेंटीमीटर, यस और नो? 4.8 इसको सॉल्व सेंटीमीटर। करेंगे तो 4.8 सेंटीमीटर हमें मिलेगा, यस बेटा। चलिए तो हमारे पास में क्या हो गया कि जो इमेज की पोजीशन है बेटा वो क्या होगी, 4.8 सेंटीमीटर होगी, और वैल्यू क्या है ये बेटा, देखो पॉजिटिव वैल्यू हमें मिली है, पॉजिटिव वैल्यू हमें मिली है पॉजिटिव। तो इसका हाँ मतलब सर। है मिरर के अंदर इमेज फॉर्म होगी, यस और नो? जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे फॉल होगी उसी डायरेक्शन में इमेज की डिस्टेंस मेजर होगी, यस और नो? हाँ तभी सर, तो यही तो तभी तो होगा। पॉजिटिव होगी बेटा, यस और नो? चलिए नेक्स्ट हमारे पास में क्या बोला गया है बेटा, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज के लिए क्या करना होगा बेटा बताइए, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन। एस एम इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, -v/u होता है, पुट द वैल्यूज विद साइन, ओके, m इज इक्वल टू माइनस v कितना आया था बेटा देखिए 4.8 पॉजिटिव, डिवाइडेड बाय u कितना बेटा -8, यस और नो? देन आपको जो मैग्निफिकेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा, पॉजिटिव 0.6, यस और नो? और मैग्निफिकेशन जब पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब नेचर ऑफ इमेज क्या होगी बेटा, नेचर ऑफ इमेज क्या होगी, वर्चुअल होगी, वर्चुअल। वर्चुअल होगी, ओके। सो nature of image will be virtual and direct, yes or no beta? And हाँ now सर। we can calculate the height of image again, as magnification is equal to the beta height of image upon height of object, yes or no? So we can write magnification is 0.6 is equal to height of image upon height of object given 1.2 centimeter, yes or no? Then height of image यस we सर। get 0.72 centimeter, yes or no beta? And again we can see that height of image is positive, yes or no? And positive image means height हमारे पास positive है बेटा, तो इसका मतलब image जो form हो रही है वो कहाँ पर होगी, above the principal axis होगी, इरेक्ट हो गया। direct होगी, है ना? तो वो हमने ऊपर पहले लिख दिया कि हमारे पास नेचर ऑफ इमेज कैसे होगी बेटा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी, ठीक है। चलिए इसका एक रे डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं बेटा, देखिए, हाँ या ना, कर सकते हैं? सर नेचर ऑफ इमेज में बस यही तो लिखना रहता है, फिर ये भी लिखना रहता है कि किन दो पॉइंट्स के बीच में फॉर्म हुआ है, जैसे कि पोल और फोकस के बीच में फॉर्म नहीं हुआ है बेटा, सर। नेचर ऑफ इमेज में सिर्फ आपको पूरा ये बताना है बेटा, डिफरेंशिएशन लिखना रहता है। नहीं आपको सिर्फ ये बताना है बेटा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, आपको सिर्फ ये बताना है कि इमेज की नेचर कैसी वर्चुअल है एंड उसके साथ में वो अपराइट है या फिर
ठीक है, आपको सिर्फ ये दो चीजें बतानी होती है। यस और नो? हाँ और डिमिनिस्ट कैसे बताओगे आप? डिमिनिस्ट आप जब बताओगे बेटा जब आपके पास में हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी। देखिए यहाँ पर अगर हाइट ऑफ इमेज जो है वो लेस देन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। यस और नो? हाँ सर। Yes or no? So you can say that the image is तो फिर सर मैं कैसे अलग से लिखना डिमिनिश्ड। होगा कि diminished. वो Image is डिमिनिश है? diminished. हाँ बेटा बोलिए। सर ऐसा अलग से लिखना होगा कि इमेज इज डिमिनिश, या फिर नहीं लिखना है? नहीं बेटा देखो जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको ये तीनों चीजें एक साथ गिवन होती है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन आपको गिवन होगा थ्योरी के फॉर्म में, देन इट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन ऑप्शन दैट व्हिच वन इज करेक्ट। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं फर्स्ट ऑप्शन आपके पास में होगा बेटा वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ऑप्शन बी आपके पास में होगा वर्चुअल इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड। यस, ऑप्शन सी आपके पास में होगा वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड, एंड ऑप्शन बी आपके पास में होगा रियल इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड। यस और नो? तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे तो वहां पर आपको ये तीनों चीजें गिवन भी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि सिर्फ इनमें से कोई दो चीजें गिवन हो। यस, वहां पर सिर्फ ये दोनों भी गिवन हो सकता है। विच वन इज करेक्ट? तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी बेटा, वो गिवन हो सकता है। देन आपसे ये भी बोला जा सकता है दैट विच वन इज करेक्ट। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्टिव में हमें जो ऑप्शंस गिवन होंगे बेटा उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। यस और नो? और अगर जैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बोला जाता है तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप ये लिख सकते हो दैट द नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, एंड हाँ इसके सर। साथ में जहां पर आप हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट करोगे, हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट करने के बाद में आपको हाइट ऑफ इमेज अगर लेस देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मिलती है तो आप उसमें वहां पर मेंशन कर सकते हो दैट इमेज इज डिमिनिश्ड। यस और नो? सर मतलब कि उसी के नीचे जहाँ पे हम लोग ये इक्वेशन हाँ लिखते हैं। हाँ, जहां पे आपने लिखा है वहां पर लिख सकते हो आप। ठीक है, ठीक है। अब हाँ इसका सर। अगर मुझे रे डायग्राम बनाना हो बेटा तो रे डायग्राम कैसे बनेगा बताओ? एंड ये हमारे पास होगा बेटा फोकल लेंथ, एंड ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये होगा प्रूफ। हमें बोला गया है दैट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितने गिवन है बेटा? 8 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी गिवन है बेटा? हाँ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर गिवन है ना बेटा, ये 12 सेंटीमीटर है, और 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट पर रखा है, मतलब यहाँ कहीं पर रखा है बेटा। देखो आया ना, इसको थोड़ा सा पास में लेना होगा, यहाँ पर ए एंड बी। ठीक है, तो यहाँ से रेज ऑफ लाइट देखो, पैरेलल रे ऑफ लाइट जाएगी। आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट विल अपीयर्स टू पास थ्रू द पास फोकस। यस और नो? देन ये जो रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होगी बेटा वो ऐसे होगी, देखो होगी यस बेटा, सर। होगी बेटा। देन उसके बाद में जो सेकंड रे ऑफ लाइट होगी, वो सेकंड रे ऑफ लाइट हम कौन से ले सकते हैं? देखो इंसिडेंट रे से होगी, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा बेटा, तो रिफ्लेक्टेड रे ये वाली होगी। ठीक है, अब देखो फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे बेटा ये है, सेकंड रिफ्लेक्टेड रे ये है। इसका मतलब है लेफ्ट साइड पर वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। So we have to increase the ray of light in backward direction. So when we increase the ray of light in backward, then we see that the rays of light are intersecting at a point, and this is the point A dash. And when we draw a perpendicular, then we get B dash. And by using the height of image, यहाँ पर height of image आपको कितने given था बेटा? 0.72 था। यस। यस और एंड यहाँ पर इसकी हाइट कितनी बेटा? 1.2 सेंटीमीटर। अब देखो आप अगर यहाँ पर देखिए, अगर अप्रोक्सीमेशन में भी बेटा यूज करोगे ना, तो देखिए यहाँ पर 1.2 सेंटीमीटर हमें पिन की हाइट गिवन है ना? और यहाँ पर देखो अगर अप्रोक्सीमेट अगर मैं आइडिया निकालूं यहाँ से, तो मुझे जो डिस्टेंस मिलेगी, तो देखो ये जो डिस्टेंस होगी बेटा वो अप्रोक्स में बोल सकता हूँ कि ये जो पिन की जो हाइट है बेटा ये वाली,
वो अप्रोक्सीमेट 0.72 आएगी कि नहीं आएगी बताइए, होगी बेटा, है ना। तो ये वो इसकी जो हाइट हाँ है ना वो अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल आएगी बेटा, हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरेबल है, ठीक है, क्योंकि जस्ट हाफ अगर हम करते हैं तो हाफ का मीनिंग क्या होगा बेटा, हाफ तो ये हो जाएगा 6.6, यस और नो, होगा या नहीं होगा, है ना। तो हाफ का 0.6 ही हो गया बेटा, तो ऊपर वाला जो पॉइंट पोर्शन बचा वो कितना बचा, 0.12 सेंटीमीटर बचा। तो इसलिए अब जब आप मेजरमेंट करके बनाओगे ना डायग्राम बेटा, तो आपको इजी वे में सारी चीजें अप्रोक्सीमेट सारी वैल्यूज क्या आएगी, इक्वल आएगी। चलिए बेटा, यहाँ पर बेटा एरो का जो डायरेक्शन है वो मेंशन करना मत भूलिएगा, यहाँ पर जो एरो का डायरेक्शन है वो ये होगा, और फर्स्ट जो रिफ्लेक्टेड रहती है उसकी डायरेक्शन ये होगी।